Welcome to this Target MHT CET series, which is your road to VJTI COEP, alright, and all other cream colleges. So, last couple of days I've been in talking to a lot of MHT CET aspirants and talking about their mock scores and what their study schedule is like. So, at the end of this video, I'm gonna give you a small little funda or mantra that you can use while preparing for this last 15-20 days and maximize your preparation. देखो, हम लोगों को बस ऑप्टिमाइज़ करना है हमारा टाइम। अभी हमारे पास 15-20 दिन है। ये 15-20 दिन में हमारा जो भी स्कोर आ रहा है हम लोगों को उसमें एक एडिशन करना है, ठीक है, जिससे कि मैक्सिमम पॉसिबल हमारा आउटपुट निकल सके और हमें अगर एक्स कॉलेज मिल रहा है तो एक्स के ऊपर का कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है। एंड दोज हु आर टारगेटिंग VJTI COEP, प्लीज़ टेक दिस वीडियो सीरियसली। आई एम शॉर्ट लिस्टिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ओवर ईयर. Today I'm going to take all the questions from differentiation which have appeared in previous CET. Alright, I'm going to try to cover most of the important questions over here and discuss out all the important concepts regarding them. So please stay tuned, pause the video, try it on your own and then compare with my solutions. Let's have a look at this question. If y is equals to sine inverse of 6x root of 1 minus 9x square, then they've also given you the range of x, then dy by dx is equals to. So basically what we need to do over here is differentiate this particular expression, right? What are we going to do over here? First thing that I'm going to do over here is simplify this thoda sa. Alright, this can be written as sine inverse of 2 into 3x into root 1 minus 3x the whole square. Alright, correct? I can write it like this. I can write 3x square. So now what I'm going to do is I'm going to put this 3x as sin theta. See guys, one thing तो we already know कि इधर sin inverse है तो मेरे को ये जो expression है ये भी sin theta के terms में लाना है या sin x के terms में लाना है, correct? This is my end goal. So that's why I'm substituting this 3x as sin theta. What do I get over here? Pay attention over here. I get sin inverse of 2 sin theta and this would be 1 minus sin square theta. I hope you would have understood what I've done over here and why I've done that. So this comes out to be 2 sin theta cos theta, right? Because 1 minus sin square theta is cos square theta and root is cos theta. In the end I get sin 2 theta, right? Because 2 sin theta cos theta is 2 sin 2 theta. So y is equals to 2 theta, right? ये sin inverse of sin 2 theta बाहर आ जाता है, correct? Let's place the value of theta over here. What was the value of theta over here, right? Theta is nothing but sin inverse of 3x, right? I got it from here, right? Now if I take a dy by dx, it's perfectly possible, right? I would get 2 upon root of 1 minus 3x square, which is 9x, and 3x ka differentiation, that is 3, and hence my answer is 6 by root of 1 minus 9x square, which is option E. And this is a CET 2021 question, guys. Let's have a look at the second question. You can note it down and try it on your own. This is a CET 2021 question. If y is equals to sin x to the power x plus sin inverse of root x, then dy by dx is equal to. So I've just cleared out my space to solve the question over here. What I'm going to do is I'm going to assume this as u. Alright, so what I have is y is equals to u plus sin inverse of root x. Alright, now after taking this, I have y is equals to u plus sin inverse of root x. Let this equation be as it is. Moreover, what have I done? U is equals to sin inverse, sin x to the power x. I'm going to take a log on both sides. So I have log u is equals to x log sin x. Correct? I have log u equals to x log sin x. If I differentiate this, what do I get? 1 by u into du u by dx is equals to x into, I'm just going to apply the product rule over here. So d by dx of log sin x plus, now I'm going to take differentiation of d by dx of x, and this log sin x remains as it is. I'm straight away going to write the answer over here, take it for simplicity. Alright, so what do I have is du by dx. I will bring this u over here and rest this complete thing in bracket over here, is equals to x into 1 by sin x, and here it would become cos x, differentiation of sin x,
here this is 1, so this remains log sin x. Clear? This is what we get over here. So basically du by dx is nothing but u का वैल्यू वापस डाल देते हैं यहाँ पे, right? We'll place the value of u again over here, which was sin x to the power x, and this as it is what we have written up over here. Now observe this equation 1. I'm going to change my ink so that you understand it. Observe this equation 1. ठीक है? If I differentiate it, what will I get? dy by dx is equals to du by dx plus इसका differentiation, you know, we know this differentiation, it's nothing but 1 upon root of 1 minus root x the whole square, correct? And root x का differentiation would be 1 by 2 root x, right? So what have we done over here? We have gotten dy by dx. Now du by dx, do we know? Yes, I know. This is the value of du by dx over here. This is nothing but x cot x plus log sin x, and I just place it over here, and that's my answer. You know, the correct answer will be option C. Let's have a look at the third question. Again a 2020 CET question, okay, and a very good question. If root of x by y plus root of y by x is equals to 4 dy by dx. ठीक है गाइज, जैसे ही ऐसा सवाल देखा, देखो हमको रूट निकालने का है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ द साइड्स. व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ द साइड्स. सो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा. व्हाट डू आई गेट? x प्लस वाई बाय एक्स, करेक्ट? इन दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर प्लस 2ab. सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट ओवर हियर? 2ab में ये दोनों कट हो जाएंगे, सो ओनली 2 इज लेफ्ट, राइट? रूट वाई कट हो जाएगा, रूट एक्स कट हो जाएगा. आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2, and this is equals to 16, right? So I'm going to take this 2 over here. What am I going to get? This becomes 14. ठीक है? So this directly becomes 14. 16 minus 2. Alright? So this is my equation. Okay? अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके what am I going to get? x square plus y square upon xy. तो मैं xy इधर लेके आऊँगा 14xy. अभी सिंपल हो गया. अभी सीधा डिफ्रेंसिएशन लो. इक्वेशन मिल गया हमको. ऑर्डर 2 है इसका, करेक्ट? Right? Let's straight away, you know, differentiate it. 2x, correct? 2y dy by dx, sorry, is equals to 14. okay, इसमें प्रोडक्ट रूल आ जाएगा सिंपल. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा y, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1. ठीक है? सिंपली व्हाट एम आई गोना डू नाउ? यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा. ये पूरा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 14 है, ये एज इट इज़ ब्रैकेट रहेगा, तो ये और ये कट हो जाएगा, 7 आ जाता है. सो व्हाट एम आई हैविंग ओवर हियर? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 7x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y. ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर. नाउ आई एम गोना टेक ऑल द डी वाई बाई डी एक्स ऑन वन साइड. आई एम गोना टेक ऑल द डी वाई बाई डी एक्स ऑन वन साइड. सो यहाँ पे y into dy by dx minus 7x dy by dx is equals to 7y minus x, राइट? ये x यहाँ पे लाया मैंने राइट हैंड साइड पे, और dy by dx. इसमें dy by dx अगर कॉमन निकाल दूँ तो y minus 7x आता है, और यहाँ पे I have 7y minus x, राइट? Hence naturally my answer will be dy by dx is equals to 7y minus x upon y minus 7x, which is nothing but option A. Let's have a look at this wonderful question. 2020 CET में आया है क्वेश्चन. ठीक है? देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट यू नो अगर आप सिंपली इसको देखोगे और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है. साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस 1/3. ठीक है? अभी सीधा डिफ्रेंसिएशन करो. ठीक है? इसका सीधा डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग. प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल आ जाएगा आपका, और राइट हैंड साइड में तो ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है? तो ये 0 आ जाएगा. लेट्स डू दिस. कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन यू नो सीधा लिखता हूँ मैं, सीधा डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको और कॉमन निकाल लेता हूँ. 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस वाई. ऑलराइट, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये जो है ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाता है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. यहाँ से हम लोग अभी कॉमन निकाल देंगे. 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला आपने, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट आ जाता है कॉस एक्स
प्लस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। करेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिला है गाइस, ये चीज़ समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है। a इंटू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये दो, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है। करेक्ट। सो बेसिकली आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। राइट, हम लोग क्वाड्रेटिक में भी ऐसा करते हैं ना। करेक्ट, क्वाड्रेटिक में भी हम लोग करते हैं ना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं ना हम लोग ऐसा। तो वन सिमिलरली मैंने इसको लिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हैंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट ट्रिग्नोमेट्री का तगड़ा एप्लीकेशन है यहाँ पे। और तगड़ा एप्लीकेशन मतलब जो एचएससी के टेक्स्ट बुक में फॉर्मूले दिए ना, आपको याद है, a माइनस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स क्या सब्सटीट्यूट करोगे, वो सब था ना, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। इसीलिए आई हैव ऑलवेज अगेन एंड अगेन रिपीटेड टू माय स्टूडेंट्स कि प्लीज़ जो एचएससी में फॉर्मूले दिए वो आपको अच्छे से इन एंड आउट टिप ऑफ योर टंग आने चाहिए, तो आप सीईटी में अच्छा कर पाओगे। लेट्स सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो बेसिकली मेरे को ये वाला इक्वेशन साइन के टर्म्स में लाना पड़ेगा। करेक्ट, साइन इनवर्स है तो ये तो हमको ट्रिक पता है। तो यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू कॉस टू थीटा डालूंगा, विच इज़ फॉर्मूला के वो सब्सटीट्यूशन के हिसाब से x इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ x। इसको याद रखना बस। ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, चलो x इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। करेक्ट, 1 प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, इट इज़ नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो डालते हैं यहाँ पे, अभी तो आसान हो गया काम। रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट, और यहाँ पे बस साइन थीटा बचता है। साइन थीटा बचता है तो बाहर थीटा आता है, बराबर। साइन इनवर्स और साइन कट हो गया, थीटा बाहर आता है। थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। करेक्ट, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यही 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। बस इसका डेरिवेशन ले लेते हैं अभी हम लोग। इसका डेरिवेशन क्या आएगा, 1/2 इंटू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बराबर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस ओवर हियर। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, बट ये मैं और फ्रिक्वेंटली डालूंगा अभी थोड़े से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक लिमिट्स और फंक्शंस, इस पे प्राइमरीली आई एम गोना पुट सम क्वेश्चंस इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, प्लीज़ कीप व्यूइंग ऑल द वीडियोज़, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, keep commenting if you have any doubts or any specific demand or topic that you want me to cover. एंड स्पेसिफिकली अभी मैं बात करूँगा आपके नेक्स्ट प्लान के ऊपर। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक थोड़ा सा प्लान बता दिया था आपको, ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बट अभी थोड़ा सा मैं इसको डीप में लेके जाता हूँ, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स का पिंग आ रहा है कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, अब क्या करें, लास्ट 15 दिन में कुछ मैजिक करे। मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना है, और आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ठीक है, 15 दिन है, 15 दिन काफ़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 दिन में कुछ तो 100 पे से 180 190 हो जाएगा, बट यार अब अच्छा परफॉर्म करना तो हमारे हाथ में है। ठीक है, बाकी हम लोग रिजल्ट बाद में देख लेंगे, अभी एग्ज़ाम तो देना ही है हमको। एग्ज़ाम कुछ डिले विले हो नहीं रहा है, ठीक है, सब कुछ उसके भरोसे बैठे हैं सब बच्चे कि कोविड आ गया, ये आ गया, डिले हो जाएगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़, सबसे पहले तो देखो मैथ्स 50 क्वेश्चन है एंड 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये बहुत हैवी है। इसमें आप एवरी डे डू 2 चैप्टर्स। ठीक है, और वो 2 चैप्टर्स आप ऐसे करोगे कि पहले आप एचएससी को हाथ लगाओगे, सारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस फॉर्मूलाज करोगे, दिन भर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, उसके साथ में आप कोई तो एक अच्छा पब्लिकेशन, मैं उसमें बोलूँगा नहीं, बट PYQ उठाओ और सॉल्व करो CET के, दैट्स इट। और एक फार्मूला शीट और एक फार्मूला वॉट एवर यू कॉल इट, ये बनाओ, पेपर बनाओ 2-3 पेपर का, उस पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, फार्मूलाज लिख दो। इंपॉर्टेंट MCQs भी लिख दो, लगे तो उनमें जो मेथड यूज़ हुआ है कुछ अलग सा दिख जाता है आपको, लिख दो उसमें। ठीक है, ये आपको 2 चैप्टर पर डे करने हैं। आप ये करोगे, आपके अगले 10 दिन में काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा मैथ्स का। ठीक है, प्लस
आप मॉक तो दे ही रहे हो, मैं कंसिडर कर रहा हूँ एवरी अल्टरनेट डे आपका मॉक चालू होगा। अगर किसी के पास मॉक नहीं है, अगर मॉक देना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, आई विल गिव यू 1 फ्री मॉक फ्रॉम माई एंड। ठीक है, आई वुड गिव यू 1 फ्री मॉक फ्रॉम माई एंड, ताकि आप उसको टेस्ट कर सको। इसको मैं एनालिसिस करने में भी आपकी मदद कर दूंगा, आपका कहाँ पे टाइम जा रहा है, कहाँ पे क्या करना चाहिए था, एवरीथिंग आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो डू दिस फॉर मैथ्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स देखो, फिजिक्स ना काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ज़्यादा कुछ अलग आता नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें PYQs अच्छे से करना है। एक दिन में आप 3 चैप्टर्स के PYQs करो, और जितने चैप्टर्स के फॉर्मूले और ये आपने किया है वो रोज़ सुबह उठ के 1 से 2 घंटे में रिवाइज करो, बिकॉज हमें भूलना नहीं, हमें रोज़ रिवाइज करना है फिजिक्स का सारा सिलेबस, फटाफट कंप्रेस्ड वे में। ठीक है, हम लोग रिवाइज करेंगे और 3 चैप्टर्स का रोज PYQs करेंगे। केमिस्ट्री सेम चीज़, एटलीस्ट आप एक दो चैप्टर्स का रिवीजन चालू रखो। MCQ सॉल्व करना बंद मत करो, आपके आँख के नीचे से रोज केमिस्ट्री जाना चाहिए। इजी टॉपिक्स छोड़ो मत, लास्ट के जो नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीमर वगैरह ये सब टॉपिक है प्लीज़ छोड़ो मत, उस पर क्वेश्चन आते हैं और हमारा स्कोर यहाँ पे ही मैक्सिमाइज हमें करना है। So please guys, if you have got any doubt and if you want any customized help from my end, please get in touch. You can put it in the comment box and I would definitely make it a point that I call you or I get in touch with you and solve your issue. Thank you.